We pray to Goddess Saraswati for blessings with all humility. Give us wisdom to make this world beautiful. May her grace inspire journey towards knowledge, art and excellence. Four, three, two, one. Nirvighna Guru me
भजे प्रचण्डतुन्दिलं सदन्तशोकभूषणं सनन्दनादिवन्दितं समस्तसिद्धसेवितं सुरासुरौघयो सदा जयप्रदं भयप्रदम्. Dignitaries to kindly come on the dais. We are pleased to share that the distinguished guests to honor us with their presence are Dr. Digambar Jayakishan Zawar and Dr. Nitin Panchkali. It is my privilege to introduce our esteemed chief guest, Dr. Digambar Jayakishan Zawar. He is indeed a multifaceted personality and society needs several such people. Not all heroes wear a cap and mask, some wear white coat. Sir has completed BMS from Ayurved Seva Sangh College, Nashik in 1993. Sir has continued as one of the leading general practitioners since March 1994. Sir is the chairman of Kamla Group of Companies. He is also the trustee of Jeevan Jyot Eye Hospital, Palghar and Shaurya Bhavan, Ayodhya, Uttar Pradesh. Sir has undertaken CSR project of revamping and modernization of Government Rural Hospital in Palghar. Sir has been awarded Vocational Excellence 2022 by Rotary Club of Boisar. He has been also honored with Maheshwari of the Year 2022 by Maheshwari Times Ujjain. I request Mrs. Vrinda Kulkarni ma'am to felicitate our chief guest, Dr. Digambar sir. I would also like to call Ms. Ipsita Patnaik to present a beautiful piece of her artwork to our chief guest, Dr. Digambar sir, as a token of gratitude. Today we are also honored with the presence of one more great personality, Dr. Nitin Panchkali. I will request Mrs. Vrinda Kulkarni ma'am to felicitate Dr. Nitin sir.
It's my pleasure to introduce an empowered woman, Dr. Deepa Sankhe, Chairperson Deep Campus. Mrs. Vrinda ma'am to felicitate Dr. Deepa Sankhe ma'am. I would like to introduce Mr. Dhananjay Sankhe, Secretary Deep Campus. I request Mrs. Vrinda ma'am to felicitate Mr. Dhananjay sir. We also have a young and dynamic personality, Dr. Ketki Sankhe. I request Mrs. Vrinda Kulkarni ma'am to felicitate Dr. Ketki Sankhe. It's my honor to introduce Mrs. Vrinda Kulkarni, Principal of Deep Global School and Junior College. I request our coordinator, Mrs. Pradnya Sankhe ma'am, to felicitate ma'am with token of love. I also welcome other distinguished guests who have graced today's function with their presence. I would also like to welcome our special guest for today's function from Nigerian. Thank you, sir, for your presence. Respected dignitaries, teachers, parents, and my dear students, on behalf of Deep Global School and Junior College, I am Mrs. Vrinda Kulkarni, Principal of Deep Global School and Junior College. Welcome to all on the annual day 2023-24 of Deep Global School and Junior College. I will request our chief guest, Dr. Digambar sir, to inaugurate our CCA book of secondary section. Chief guest Dr. Nitin sir to inaugurate the CCA book of primary section. With great excitement and pride, we now transit to heart of our ceremony, which is prize distribution. Let's take a moment to reflect on the countless hours of hard work, determination, and passion that each student has poured into their respective endeavors. Each prize carries with a story of determination and commitment to excellence. To present this award, I would like to invite our chief guest, Dr. Zawar sir, to honor our students. The first category is of the academic sections. From Standard 12th Commerce, Ms. Afrin Imran Sheikh, she secured first rank in 12th Commerce Board. Her percentage is 86.17. Next is Ms. Manisha Lakshman Gupta. She secures 77.67 percentage. Thank you, sir. Next is Master Rushikesh Sonu Singh Patil. He secured 74.5 percentage. Next, we are moving to science stream from 12th standard. First is Master Kaushal Bhai Gharat. He secured 81.83 percentage. Currently, he is pursuing engineering in computer science in MGM College of Engineering, Navi Mumbai. Thank you, sir. Next is Master Rimai Rajendra Patil. He secured 78.67 percentage and he is currently studying information technology at Thakur College, Kandivali. Audience, please clap.
clap for our students. Thank you, sir. Next is Miss Shreya Kuber Manakpure. She secured 78.5% and she is studying MBBS from Government Medical College, Satara. Parents, please cheer for our students. Thank you, sir. Now, I will request our eminent chief guest, Dr. Zawar sir, to say a few words. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीप ग्लोबल स्कूल एवं जूनियर कॉलेज के इस पारितोषिक वितरण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर नितिन सर, प्रेसिडेंट दीपा मैडम, सेक्रेटरी धनंजय सर, प्रिंसिपल रुंदा मैडम, मैनेजिंग मेंबर केतकी मैडम, इस सभागार में उपस्थित सभी छात्र, उनके अभिभावक, सभी को नमन, वंदन, जय श्री राम। मुख्य अतिथि के रूप में इस अद्भुत समारोह पर मुझे निमंत्रित करने हेतु जिन्होंने सुझाव रखा होगा, उसे जिन्होंने अनुमोदित किया, उसे पारित होने दिया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रित किया, सम्मानित किया, विशेष विभूतियों के साथ में इस मंच को साझा करना एवं इस प्रबुद्ध सभागार के सामने मेरे मंतव्य को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। आयोजकों का हृदय की असीम धरातल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस भव्यतम स्कूल छात्र और अभिभावकों से भरा हुआ सभागार और अद्भुत आयोजन को देखकर मुझे मेरी स्कूल याद आ रही है। 50 साल पहले सिंदुर्णी नाम का जामनेर तालुका में जलगांव जिले में एक छोटा सा देहात, छोटी सी बस्ती, मराठी मुलांची शाळा, मराठी माध्यम, आसपास के 10-20 गांवों में एक ही स्कूल, इसलिए स्कूल में छात्रों की बड़ी भीड़। स्कूल घर से 3 किलोमीटर दूर, पैदल जाना, पैदल आना। उसकी प्रतिमा आपके सामने कुछ शब्दों में रखना चाहूंगा जिससे आपको उस समय की परिस्थिति का आकलन हो। स्कूल मिट्टी की, फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, खिड़कियों को कपाट नहीं, जलपान की साफ सुथरी व्यवस्था नहीं, शौच शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं। उस समय में हमारे घर भी देहात में ऐसे ही रहा करते थे। फर्श नहीं, गोवंश गोबर से लिपना, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, फ्रिज नहीं, किसी मनोरंजन का कोई साधन नहीं। माँ को मिट्टी के चूल्हे पर रसोई करना। बारिश के दिनों में बहुत फुजियत होती थी, 10 जगह पर बर्तन रखकर भी पानी जमीन पर गिरता था, कीचड़ होता था, गली में कीचड़ होता था। इस किस्म का अतिशय निम्न जीवन शैली, देहाती जीवन शैली में हमारा बचपन गया। 10वीं की एग्जाम्स के लिए तहसील का गांव जामनेर 30 किलोमीटर, वहां पर परीक्षा के अति महत्व दिनों में बस से जाना। एक बस मिस हो गई तो 2 घंटे तक बस स्टॉप पर इंतजार करना। आप सब लोग जानते हैं आज भी और उस समय पर भी 10वीं का स्ट्रेस बहुत रहता था। एग्जाम्स के पहले दिन की जो पढ़ाई होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। हम तो तहसील के गांव में आने जाने में ही थक जाते थे।
पढ़ाई का स्तर भी अति निम्न था। 10वीं का निर्णय लगा। छात्रों को एक हॉल में हमारे हेडमास्टर ने बुलाया। हम सब लोग इकट्ठा हुए। छात्रों की भीड़ ज़्यादा थी। 10वीं की परीक्षा में 150 बच्चे बैठे थे। हेडमास्टर ने चौक और ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू किया। इस ब्लैक बोर्ड पे जितने छात्रों के मैं नाम लिखता हूँ उतने उत्तीर्ण हुए, बाकी अगली साल कोशिश करना। उस बोर्ड पर सिर्फ 15 छात्रों के नाम लिखे गए। 150 में से 15 स्टूडेंट पास। 10% का निर्णय लगा। मैं इन दिनों में कई स्कूल में जाने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्य मिला। मैं उस स्कूल के निर्णय देखता तो चौंकता हूँ, खुशी होती है। 100% कई सालों से उनके निर्णय लगते हैं। उस 15 नामों के सूची में पहला मेरा नाम था, दिगंबर जयकिशन जवर। 10वीं की कक्षा में प्रथम क्रमांक से मैं उस वर्ष उत्तीर्ण हुआ। उस समय उच्च क्रमांक में जो छात्र उत्तीर्ण होते थे वो इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई करते थे। डॉक्टर बनने का सपना लेके मैं नासिक पहुंचा। डॉक्टर बनकर पालघर आया। पालघर में स्वयं का दवाखाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद अपने पूरे परिवार को पालघर में स्थलांतरित किया। भाई बहनों की शादी, स्वयं की शादी की, उद्योग जगत की शुरुआत की। छोटी सी एक मेडिकल स्टोर, क्योंकि डॉक्टर के लिए सबसे आसान जो कोई उद्योग होगा तो एक मेडिकल स्टोर। हमने शुरुआत में मेडिकल स्टोर शुरू की। वहाँ से जो हमारी यात्रा शुरू की उद्योग जगत की, आज इस MIDC में हमारे 5 दवाई के कारखाने कार्यरत है। मैं धनवान बना, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त की। आज इस अद्भुत आयोजन पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में जब निमंत्रित किया गया, वो भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी में समझता हूं। अति निम्न देहाती जीवन शैली से उठकर सामान्य परिवार का एक छात्र इस मंच पर आ सकता है तो मुझे कतई शंका नहीं बल्कि विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित छात्र भविष्य में अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर सफलता को छुएंगे, क्योंकि आप सभी डीप ग्लोबल स्कूल के प्रिविलेज स्टूडेंट्स हो। सफलता की मैं मेरी बात दिए हुए सीमित समय में समाप्त करूंगा। 15 मिनट का मुझे समय दिया गया है। 15 मिनट में मैं मेरी बात रखने की कोशिश करूंगा। सभी विषयों को शीघ्र स्पर्श करके मैं बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सफलता की मेरी व्याख्या जो है कि हमने निर्धारित किया हुआ लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करना, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, समाज के विधायक रचनात्मक रचनाओं में हमारी क्षमता के अनुसार योगदान देने की क्षमता प्राप्त करना, हमारे व्यक्तित्व चारित्र और पुरुषार्थ से कर्तृत्व से समाज में शाश्वत स्वरूप में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता को प्राप्त करना। तो ये सफलता की परिभाषा तो ठीक है, इसे प्राप्त किया कैसे जाता है, क्योंकि हम समाज में देखते हैं कई लोग अन्य लोगों से विशेष सफल दिखते हैं। तो ऐसी क्या बात होगी, ऐसी क्या खूबियां हैं उनमें जो इतने सफल हुए। विश्व में अत्यंत प्रभावशाली और सफल व्यक्तियों की जो सूची है, उन विभूतियों के अगर आप चरित्र आत्मचरित्र पढ़ते हैं तो आपको कुछ आदतें समान मालूम पड़ती है, कॉमन हैबिट्स। अगर उन आदतों को हमने समझा, जानने की कोशिश की और उसका अनुसरण किया तो सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। तो वो आदतें कौन सी है? तो सबसे पहली आदत है कि रोज सुबह जल्दी उठना, यानी कि रात में जल्दी सोना। 7 से 8 घंटे की निद्रा अत्यंत महत्व की है। नंबर 2 पे आता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता का विकास। शारीरिक क्षमता के लिए आपको रोज फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए
आपको ध्यान धारणा प्राणायाम और ईश्वर की प्रार्थना करना अत्यंत जरूरी है। बौद्धिक क्षमता बौद्धिक विकास होने के लिए आपको कई किताबों को रोज पढ़ने की आदत लगानी पड़ेगी। किताब वो जो मनोरंजन की ना हो, फिक्शन ना हो, किताबें वो पढ़ी जाएगी जिसमें इस विश्व के प्रभावशाली सफल व्यक्तियों के आत्मचरित्र हो, किसी ने उनके चरित्र लिखे हो, जिसे पढ़कर अपने मस्तिष्क में वो सकारात्मक बदलाव ला सके, अपने को प्रभावित कर सके। आहार अत्यंत महत्वपूर्ण चीज होती है। सम्यक मात्रा में सही समय पर संतुलित शाकाहार करना ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों के प्रति सद्भाव, आदरपूर्वक समर्पण भाव से उनके साथ व्यवहार करना। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इज हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। समकक्ष हमारे हितचिंतक लोगों के साथ में बैठकर विचार मंथन करना। विचारों से संकल्प की प्रवृत्ति होती है और यह संकल्प से सिद्धि, संकल्प यानी अपना ध्येय, संकल्प से सिद्धि तक की जो सफर है, जो यात्रा है, उसकी बुनियाद इस संकल्प के दृढ़ता में होती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर लीड्स टू स्ट्रॉन्ग डीप रूटेड थॉट्स, थॉट्स गेट कन्वर्टेड इनटू योर एक्शन, एक्शन मेक्स योर हैबिट्स, हैबिट्स गिव योर कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, और चरित्र से आपको अभिगम आता है। अभिगम मतलब एटीट्यूड, और यही जो एटीट्यूड है आपको आपके संकल्प की सिद्धि तक की यात्रा पूर्ण करने में कारणभूत हो सकती है। बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई पर्सनली बिलीव इन इट। प्लीज बिलीव इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई पर्सनली बिलीव इन इट। प्लीज बिलीव इन सुप्रीम पावर गॉड, आई पर्सनली बिलीव इन इट। प्लीज टेक आउट क्वालिटी टाइम फॉर प्रेयर्स। प्रतिदिन मैं स्वयं 3 घंटा धार्मिक आध्यात्मिक उपचारों में समर्पित करता हूं। रिमेंबर ऑलवेज, थिंकिंग लो इज अ क्राइम। दीपक जी पारिक, एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अपने लक्ष्य कितना ऊंचा रखना चाहिए इसके लिए हमेशा बताते हैं। वो उदाहरण देते हैं क्रिकेट T20 मैच का। 20 ओवर्स, 120 गेंद, 720 रनों का आप लक्ष्य रखो। तो आपसे सबको निवेदन है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज, यू बॉर्न पुअर इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इज डेफिनेटली योर फॉल्ट। किसी ने सही कहा है कि सपने तो वो होते जो नींद में नहीं, जो सपने तो वो होते जो आपकी नींद उड़ाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इन सभी चीजों का आप आत्मसात करने की कोशिश करोगे, अनुसरण करोगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होने के बाद अपना एटीट्यूड, अपना बर्ताव, अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बता के मेरी बात को पूर्ण विराम देता हूं। सफलता का श्रेय कभी भी अपने पुरुषार्थ को ना दे, उसे ईश्वर को समर्पित करें। आपकी सफलता में अपने प्रियजन, मित्रों, कई लोगों की शुभकामना है, आशीर्वाद शामिल है, उनके श्रेय होता है। इससे फायदा यह होगा कि इसमें जब आप धन प्राप्ति करोगे या जो सफलता प्राप्त करोगे वो आपके सर नहीं चढ़ेगी, आपके पैर जमीन पर टिके रहेंगे। आपके आहार विहार, आचार विचार, ये सभी में आपकी सात्विकता, सादगी नजर आएगी। इससे आप समाज में विशेष मान सम्मान के लिए प्राप्त होगे। सफलता जब प्राप्त होगी कि आपको सबसे पहले ऋण निर्देश या ऋण से मुक्त होना चाहिए। प्रथम चरण की सफलता प्राप्त होने के बाद आपने अपने परिजनों के उत्थान के लिए विशेष योगदान देना चाहिए। द्वितीय चरण की सफलता प्राप्त होने के बाद अपने समाज के उत्थान के लिए आपने योगदान देना चाहिए। और तृतीय अंतिम चरण की जब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तो राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए आपने अपना योगदान देना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित छात्र, अभिभावक और यह सभी गुरुजनों को मेरा निवेदन है कि यहाँ पर जो छात्र 10वीं 12वीं पदवी लेने के बाद
सपना देखते होंगे कि हम आगे की विद्यार्जन के लिए, नौकरी के लिए अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जाए, तो आप सभी लोगों को निवेदन है कि आपके दिमाग से वो बात निकाल दे। भारतवर्ष तेज गति से विकसित हो रहा है। 2047 तक विश्व की महासत्ता बनने जा रहा है। 2015 हमारी अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक थी, आज 8 सालों में ये 5वें क्रमांक की है। विश्वास करो इसी साल दिसंबर तक हम 4थे क्रमांक पर होंगे। 2040 तक हम 2य क्रमांक पर होंगे। 2047 में हम लोग जब शतक पूर्ति स्वतंत्रता की मनाते रहेंगे, उस समय विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम उभरेंगे। इस भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं, भारतवर्ष का उनका भविष्य उज्जवल है। यहाँ पर उद्योग व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अनंत उपलब्धियां, अनंत अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपको अभी बलिदान की नहीं, योगदान की जरूरत है। आप निश्चित करें कि हमें इसी भारतवर्ष में रहकर हमारी जिम्मेदारी का सुचारू रूप से निर्वहन करना है और भारत के उत्थान के लिए काम करना है। अंत में जिस अभिगम के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, चरित्र व्यक्तित्व को जिन्होंने मेरा निखारा, उन सभी विभूतियों को मैं आज याद करना चाहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे इष्ट देवत भगवान दत्तात्रेय आते हैं, उनका पूरा परिवार आता है। परिवार का मतलब श्रीपाद, श्री वल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती, स्वामी महाराज, श्री स्वामी समर्थ, हमारे नाना जी, नानी जी, हमारे माता जी, पिताजी, मेरे बंधु राजू दादा, मेरी धर्मपत्नी पतिव्रता श्री योगिता जो कमला फाउंडेशन की अध्यक्षा है। इन सभी के आशीर्वाद स्नेह को मैं आजीवन स्मरण रखूंगा। जाते जाते आप सभी छात्रों को भविष्य में आपको सफलता, दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई हासिल करो। आप स्वयं का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करो। अपने पुरुषार्थ का ऐसा परिचय दो कि इतिहास भी आप सभी के लिए एक पन्ना रिक्त रखे। आपने चारित्र व्यक्तित्व को, उस पन्ने को रंगीन करना है। आप सभी ने मेरी बात को शांति से सुना, आयोजकों ने मुझे अवसर दिया आपसे मैं बातचीत कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को इस मंगल कामना के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Now, I would like to request our eminent chief guest, Dr. Nitin sir, to share a few words. Hello. Good evening, everyone. Honorable Dad, respected members, respected teacher, parents and students. As you all know, I am a pediatrician. I am a doctor, and I don't want to waste much of your time. I will not waste my time. Just as a pediatrician, I will give some advice to our students. एक्चुअली बहुत सारा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, बहुत सारा आउटडोर गेम्स खेलो, अवॉइड जंक फूड्स, अवॉइड मोबाइल्स एंड टीवीज एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स। हेलो। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर which you are going to face in the future. Tough competition you are going to face. Be prepared for future. And I would like to thank Deep Global School and Junior College for giving me this opportunity. Thank you. Now I request the backbone of Deep Campus, Dr. Deepa Sankhya ma'am, to address this evening. आज के एनुअल डे के चीफ गेस्ट डॉक्टर दिगंबर झवर सर, डॉक्टर नितिन पंचागले सर, दीप एजुकेशन के सेक्रेटरी धनंजय संखे सर, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर केतकी संखे, दीप ग्लोबल के प्रिंसिपल वृंदा मैडम, दीप ग्लोबल के पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। इस साल दीप कैंपस को 18 साल पूरे हो रहे हैं।
आप सभी जानते ही हैं दीप कैंपस की शुरुआत 2006 में बीएड कॉलेज शुरू करके हमने की थी और बीएड और डीएड कॉलेज को 17 साल कंप्लीट हो गए हैं और इस 17 साल में 2500 प्लस टीचर्स हमने वापी से लेकर अंधेरी तक जो स्कूल है वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स एज ए टीचर काम कर रहे हैं. Of thanks on behalf of Deep Global School and Junior College on the occasion of Annual Day celebration. I would like to express a deep sense of gratitude to our chief guests Dr. Digambar Zawar and Dr. Nitin Panchgale for accepting our invitation and attending our celebration as chief guests. Your valuable presence and life-changing thoughts have motivated us. I would like to thank our chairperson Dr. Deepa Sankhe, Registrar Mrs. Sonali Hadkar, Management Trustee Dr. Ketki Sankhe, Principal Mrs. Vrinda Kulkarni, Principal of Deep Global School and Junior College, for taking this initiative to plan and arrange this wonderful celebration. I also thank to distinguished dignitaries who have graced this function. Further, I would like to say thank to all the HODs, coordinators, parents, stage decorators, sound system team, photographers, refreshment team, teachers and non-teaching staff.